All right. So in the last session, we started with structure of atoms and nuclei. तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर इस चैप्टर में देखने वाले हैं एंड एज यू ऑलरेडी नो कि हमने कल बेसिक जो प्रिमिटिव मॉडल्स थे जैसे कि डेल्टन देन थॉमसन देन रुदरफोर्ड हमने डिटेल में देखा. अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इसलिए उसको एटम बोला गया था बिकॉज इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. तो इंडिविजिबल था वो. देन ही सेड सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे और मास भी सेम होगा. देन atoms of different element combine together to form molecules. He did not speak about positive negative charges. Then accidentally in an experiment J.J. Thomson discovered that there are some negatively charged particles which are coming out from a metallic plate. तो समझा कि atom can be further divided into positive and negative charges. Then Thomson gave plum pudding model, and in the plum pudding model he could not explain stability of atom. Then Rutherford put forward his own model in which he said all the positive charge is concentrated in a very small region at the center that is called as nucleus. Electrons are revolving around nucleus in circular orbit, but it cannot. Rutherford model could not explain stability of atom because electrons, if they are in circular motion is accelerated motion, and when a charge is accelerated, it will continuously radiate energy. So electron should lose energy and it should fall into nucleus. So atom cannot be stable. दूसरा ये था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें कंटिन्यूस नहीं मिलता है. वी गेट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, जो हम आगे जाके देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के केस में. तो दिस आर द टू फेल्यूर्स ऑफ Rutherford's model. So now we want to start with next model, which is Bohr's model. So Bohr put forward his model in the form of three postulates. तो जो भी रुदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम करने के लिए बोहर गेव अ न्यू मॉडल इन द फॉर्म ऑफ थ्री पोस्टुलेट्स. पहला पोस्टुलेट ये था दैट इलेक्ट्रॉन, and he spoke about hydrogen atom. The electron in an hydrogen atom is orbiting, is in circular motion. It is in circular orbit around nucleus. Nucleus here is just one proton. तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है, एनीथिंग विच इज इन सर्कुलर ऑर्बिट, टू रिमेन इन सर्कुलर ऑर्बिट वी ऑलरेडी नो कि हम लोगों को वी नीड सेंट्रिपिटल फोर्स. तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, the electron in a hydrogen atom is orbiting in circular orbit around the nucleus, and nucleus is at the center of the orbit. The necessary centripetal force for the circular motion is provided by electrostatic force of attraction between proton and electron. तो क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में है तो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए. सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आया? तो वो आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब कुलॉम्बिक फोर्स से. वैसे दिस इज अ वेग assumption क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस शुड बी एट रेस्ट. यहाँ पे चार्जेस रेस्ट में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्यों ले सकते हैं ऐसा? क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑन इट्स ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी होगा, द डिस्टेंस रिमेन्स सेम. और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कुलॉम्बिक फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. तो चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ई है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव ई है, और डिस्टेंस पे डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट? सो यू कैन अप्लाई
you can use Coulombic force here which is basically electrostatic. तो हमको पता है कि centripetal force होता है mv square by r where r is radius of circular orbit equal to electrostatic force होता है 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 and you know one charge is e other is minus e so e square because I'm not writing negative because we are considering only magnitude of force here divided by distance square, right? So this was first postulate, right? तो ये रुदरफोर्ड ने भी बोला था कि electron is revolving in circular orbit, but Rutherford did not say anything about source of centripetal force. Centripetal force कहाँ से मिला? Rutherford said, I don't know. It is in circular orbit. That's it. Actually, he did not make any comment on it. So, postulate two. Postulate two is an outcome of Rutherford's failure. क्योंकि the moment you say electron is in circular orbit and circular motion is accelerated motion, मतलब electron is accelerated, and as I told you in the last session that accelerated electron should continuously radiate energy and it should fall into nucleus. So Bohr's second postulate says that electron can be in circular orbit without radiating energy, but there's a condition for that. तो ऐसा किसी भी डिस्टेंस पे ऑर्बिट नहीं हो सकता. Rutherford did not explain this, but Bohr said कि you can have some specific orbits और इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिट में है तो वो रेडिएट नहीं करेगा. So if the electron is in some specific orbit, it does not radiate energy. Okay, so the electron revolves around the nucleus only in those orbits whose angular momentum, in which angular momentum of electron is integral multiple of h cross, where h cross is h upon 2 pi. मतलब वापस समझा देता हूं, वही ऑर्बिट अलाउड है इन शॉर्ट जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन? बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, राइट? तो ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. और एंगुलर मोमेंटम आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो. आपको पता है, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन mvr or you can say I omega. Why? Because you have learned rotational motion. Angular momentum is I omega, which is nh upon 2 pi. Or you know what is omega? You know what is I? I for a ring is mr square. Omega is v by r, that is nh upon 2 pi. एक r कैंसिल हो गया, राइट? तो mvr ही आ गया वापस से, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. वैसे आप डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम के लिए mvr लिख सकते थे, no issues, where n is 1, 2 and so on, because we said it is integral multiple of h upon 2 pi. Okay, n is called as principal quantum number. It tells you कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है. Okay, good. Third postulate, we'll write this, we'll repeat this again, and notes I will upload today क्योंकि दोनों के साथ में कंबाइंड नोट्स बना के रखे, that will be uploaded. Postulate number 3. देखो ऐसा है कि पहले postulate ने बताया electron is in circular orbit, right? Necessary centripetal force is given by electrostatic force of attraction between electron and the nucleus. दूसरा ने ये बताया कि कुछ ऐसे स्टेबल ऑर्बिट होते हैं जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व भी हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, एंड in those orbits angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. By the way, इस h upon 2 pi को h cross भी बोलते हैं. Okay, just for your information, right?
तो फिर अगर स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है तो फिर कब करेगा? दैट इज थर्ड पोस्टुलेट. So an electron radiates energy when it jumps from higher orbit to lower orbit. If electron is in nth higher orbit, the energy of electron in each orbit is fixed. पहले ऑर्बिट में स्पेसिफिक वैल्यू होगी, सेकेंड ऑर्बिट में स्पेसिफिक वैल्यू होगी, थर्ड में स्पेसिफिक होगी. तो अगर वो nth हायर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी ई एन होगी. अगर वो nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में जा रहा है तो pth ऑर्बिट में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, nth में ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के पास. तो जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट n से p आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन हैज टू इमिट. सो द डिफरेंस इन energies of electron in nth higher orbit and pth lower orbit is emitted whenever electron makes a transition from nth orbit to pth orbit. And you know that Planck's quantum theory, Planck says photons are emitted in the form of packets and each packet has energy, right? तो ये तीन पोस्टुलेट के बेसिस पे पूरा एटॉमिक थ्योरी है. और using these three postulate you can find out equation for radius of orbit. You can find out what is velocity of electron in that orbit. You can find out what is energy of electron in that orbit. अगर वो समझा है तो पूरा का पूरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा समझेगा. एल बीपी बीपी लिमेन बाद में पास्चेन ब्रैकेट फुन, ये सारे सीरीज समझेंगे. ओके, तो आई विल क्विकली रिवाइज. बोहर put forward his theory of atom based on failures of Rutherford model. ये 1913 में है. आपको याद होगा Rutherford का 1903 में था. And in the next 10 years Bohr put forward his theory. Of course it was based on Rutherford's failure, and failure was Rutherford could not explain atomic spectra, could not explain stability of atom. Okay, so Bohr gave three postulates. सबसे पहला था, Rutherford ने भी वही बोला था कि electrons are in circular orbit. Bohr also said electrons are revolving in circular orbits around the nucleus, but the necessary centripetal force is given by electrostatic force of attraction, जिसको coulombic force भी बोलते हो आप. As I told you, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस स्टैटिक होने चाहिए, तो हाउ कैन वी अप्लाई? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे. मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है. एंड ऑन डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कहीं पे भी होगा, उसका डिस्टेंस तो आर ही होने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज. So you can say magnitude of centripetal force is equal to magnitude of electrostatic force. We know a centripetal force is mv square by r or mr omega square or mv omega. It is 1 by 4 pi epsilon 0 e square by r square. E square by r square कहाँ से आया? ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है. हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए E इंटू ई स्क्वायर आया, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. देन अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करना चाहिए. बट बोहर सेड कि इलेक्ट्रॉन कैन बी ओनली इन दोज स्टेबल ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसी का एंगुलर मोमेंटम होगा. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो जिस किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2 पाई का, वो स्टेबल ऑर्बिट है. मतलब जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, राइट? जिस ऑर्बिट में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती वो ऑर्बिट फॉरबिडन होता है, वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता.
right? Good. So we know L is mvr, so mvr equal to nh upon 2 pi. तो अगर ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, फिर कब करता है? क्योंकि हमको तो एनर्जी मिल रहा है ना, दिस फोटॉन्स वी आर रिसीविंग, राइट? तो कब करेगा फिर? देन बोहर third postulate tells us that electron will emit radiation only when it jumps from nth higher orbit to pth lower orbit. मतलब जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तब फोटोन इमिट होगा. And the energy of photon is the difference of energies of electron in those two respective energy levels. nth orbit में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है En, pth ऑर्बिट में Ep, En is greater than Ep. तो जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, it will be given out in the form of photon. And Planck's quantum theory tells us that energy of photon is h nu. Right. If you know this much, then next thing is we want to find out what is radius of Bohr orbit. So we want to find out an equation for radius of electron orbiting around nucleus. तो कैसे करेंगे? सिंपल है, बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करेंगे. बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट से हमको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0. एक r और एक r कैंसल, e स्क्वायर बाय mr. इक्वेशन नंबर 1. What do you want to do is हमें रेडियस का इक्वेशन चाहिए, राइट? तो हमने क्या किया, बोहर का पहला पोस्टुलेट लिया और बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट से हमको v स्क्वायर मिल गया, राइट? गुड. देन बोहर का सेकंड पोस्टुलेट उठाओ, एंड यहां से भी आपको v मिलेगा. v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई 1 अपॉन mr. इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 एंड 2 याद होगा आपको, इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे v स्क्वायर था, तो मैं यहाँ पे इस v का स्क्वायर लिख लूंगा इक्वल टू राइट हैंड साइड 1/4πε0 e स्क्वायर बाय mr. ओके, तो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 1/m स्क्वायर r स्क्वायर 1/4πε0 e स्क्वायर बाय mr. एक 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 गया, 4 4 और 1 बाय भी कैंसल आउट, राइट? तो वी वांट टू हैव r. तो r, इस r को वहां शिफ्ट कर देते हैं और राइट हैंड साइड पे तो बचा सिर्फ ε0 है और e स्क्वायर है, तो ये आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर ε0 अपॉन पाई m r, r वहां शिफ्ट कर दिया था, पाई m e स्क्वायर, राइट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट. क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड है, इट कैन बी एनी. सो nth, और यहाँ पे n है, मतलब ये आपको वही बता रहा है that you are finding out expression of radius of nth Bohr orbit. So you have this expression of radius of nth Bohr orbit as h square epsilon 0 h square epsilon 0
pi m e square into n square, राइट। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए आपको n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो r1 इक्वल टू h स्क्वायर इप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर, और यहाँ पे 1 डालोगे, राइट। तो as you see from this equation, let us call this as equation number 3, h constant, epsilon 0 constant, pi constant, m constant, e भी constant, मतलब constant value है। तो if I substitute all these constant values, h is 6.16 to 10 power minus 34, epsilon 0 is 8.8 to 10 power minus 12, pi तो pi है, mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31, e is 1.6 into 10 power minus 19। ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट 0.5374 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 power minus 10। This is the radius of first Bohr orbit. Okay. In general, what we see is in general, we know that this equation we already have, and we know ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये R1 है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 डालोगे तो यही बचेगा सिर्फ, तो R1 है। तो इन जनरल यू कैन राइट डाउन रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट एज n स्क्वायर टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। इसका मतलब रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बेसिकली। ओके, सो सॉरी, Rn is proportional to n square. Clear? Good. So this is how you find out radius of nth Bohr orbit. Second Bohr orbit आएगा आपका 4 times of R1, थर्ड आएगा 9 times of R1, so on so forth, right? लेकिन this is strictly for hydrogen atom. क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के पास हो रही थी। इफ यू टेक हीलियम तो वहां पे Z के साथ मल्टीप्लाई होगा एटॉमिक नंबर के साथ। ये स्ट्रिक्टली हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम लोग। यू शुड ऑलवेज नो दिस। हर जगह पे फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो, इट इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। इज इट क्लियर? गुड। देन next task is that we want to find out what is velocity of electron in nth Bohr orbit. So we want to find out velocity of electron. तो क्या करेंगे velocity of electron find करने के लिए? We already have a equation which is showing us velocity, right? Then we have a equation which is giving us radius. So we know V, and we also know what is R. Right? So velocity of electron in nth Bohr orbit is nh upon 2 pi mRn, and radius of nth Bohr orbit is h square epsilon 0 upon pi m e square n square. तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे R की वैल्यू, तो यू विल गेट बी n इज इक्वल टू nh अपॉन 2 pi m Rn is h square epsilon 0 pi m e square n square. Cancel, 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 cancel and cancel. तो जो कुछ बचा दैट इज वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। क्या क्या बचा? अब ये e स्क्वायर ऊपर जाएगा, e स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन 2h epsilon 0 n, यही बचा। दिस इज व्हाट यू हैव इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth Bohr ऑर्बिट। दिस इज शोइंग यू जैसे
Rn was proportional to n square, Vn is proportional to 1 by n. इस टाइप की क्वेश्चन, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी आपको जेई नीट टाइप के क्वेश्चन में यूज करनी होती है. Good. I'll be good up to this point. If I tell you to derive all this by yourself, will you be able to do that? क्या करना है, बोहर का पहला पोस्टर लेना है, v स्क्वायर मिलेगा, सेकंड पोस्टर लेना है, v मिलेगा, ये v की वैल्यू v स्क्वायर में डालनी है, सिंप्लीफाई करते जाना है तो आपको r मिलेगा, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट. n की वैल्यू 1 डालोगे तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगा r1, उसकी वैल्यू आती है 0.5374 एंगस्ट्रॉम. तो इन जनरल radius of nth Bohr orbit can be written as n square r1. Then वो r का इक्वेशन v मतलब बोहर के सेकेंड पोस्टुलेट में सब्स्टिट्यूट करना है, फिर आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth Bohr orbit. And interestingly, it is independent of radius. वो r पे डिपेंड ही नहीं करता. इसका मतलब ये होता है it just depends on in which orbit electron is. तो इसका मतलब ये भी होता है जितना इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में होगा उतना वेलोसिटी कम होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन इफ इट इज इन फर्स्ट ऑर्बिट इज मूविंग फास्टर, इफ इट इज इन सेकेंड ऑर्बिट इट इज मूविंग स्लोअर. और ऐसा होना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो भी वेलोसिटी यहाँ पे मिलने वाला है वो मिलने वाला है फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. और आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन 1 by r स्क्वायर. जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, उतना वेलोसिटी कम होगा. राइट? so this is what you need to observe. ये आपको खुद को करना होता है. if you want to do good in science, ये आपको खुद को करना पड़ेगा. nobody will have to should tell you every time what do you understand by this. this is what you understand. और इसका आगे जाके और बहुत यूज होगा हमें while we do will be preparing for JEE NEET that time. okay, अभी हमने क्या क्या फाइंड किया. we said कि चलो इलेक्ट्रॉन किसी तो ऑर्बिट में है, उसका रेडियस का फॉर्मूला बना लेते हैं. फिर अगला क्वेश्चन ये आया, अरे हर एक ऑर्बिट में वेलोसिटी सेम होगा क्या, लेट्स चेक. तो हमने चेक कर लिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए, एनर्जी, डज दिस इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी इन ईच ऑर्बिट. ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि तो थर्ड पोस्टुलेट ने बता ही दिया है आपको. अगर सेम होता तो फिर nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में जंप मारने के बाद कोई एनर्जी इमिट नहीं होना चाहिए था if it had same energy. तो नेक्स्ट टास्क is to find out what is the energy of electron in nth orbit. हम लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं. तो how do you find out energy? Is a very simple thing. How will you find out energy? No, I am not saying energy of photon, energy of electron when it is orbiting in some orbit. So इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा तो इट विल possess two energies, potential and kinetic. Potential because that electron is in the field of proton मतलब nucleus, इसलिए potential. और kinetic because it is in motion, तो that is why kinetic. और आपको पता होना ही चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिंपल और सेम स्ट्रक्चर होता है K, you know K, राइट? आपको मैं और सिंपल बताता हूँ. डू यू रिमेम्बर मैंने पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था आपको, चार्ज इनटू पोटेंशियल. कौन सा चार्ज ऑर्बिट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज. पोटेंशियल किसका? न्यूक्लियस का. व्हाट इज पोटेंशियल? 1 by 4 pi epsilon 0 E by R, Q by R. हाँ तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी.
1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर। और सिर्फ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में नीचे आर स्क्वायर आता है, या फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में आर स्क्वायर आता है। ये सिंगल चार्ज है, यहाँ पे आर रहने वाला है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ओके राइट, भूलोगे नहीं। चार्ज इनटू पोटेंशियल, विच चार्ज इज ऑर्बिटिंग ई, इलेक्ट्रॉन। किसका पोटेंशियल? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में क्या है? एक प्रोटॉन है। तो 1/4πε0 ई बाय आर। और टोटल एनर्जी तो सिंपल है, टोटल एनर्जी इज जस्ट, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट हाफ mv स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी निकालना तो बहुत सिंपल केस है। कैसे? तो वो ऐसे, I'll take this here, ओके। एक आर गया, मैं क्या करूंगा? हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को, तो ये 8 हो गया। हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, तो ये मिल गया आपको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8πε0 ई स्क्वायर बाय आर। But we are talking about nth orbit, so let us put Rn and Rn, because अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि n की वैल्यू 1 है या नहीं है। Okay, so we have kinetic energy equation here. Is it clear? Good, good. Then अब total energy, so it is just addition of kinetic and potential. So total energy is equal to potential energy, and potential energy 1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर, और ये है 1/8πε0 ई स्क्वायर बाय आर। एक छोटी सी गलती हुई है, बताता हूं कहां पे। जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला था आपने? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो जब चार्ज लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? ये इसलिए लगाना पड़ता है। और पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले मुझे फोर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब था, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। अगर होता भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्ड डायरेक्टेड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्टेड है, तो डायरेक्शन डिड नॉट मैटर हियर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में माइनस ई लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको ग्रेविटेशन में बताया था दैट जब भी फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव, तो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस और टोटल एनर्जी में भी माइनस आता है। तो माइनस साइन हियर विल टेल यू दैट द सिस्टम इज बाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इफ यू पुट अ नेगेटिव हियर, देन योर जॉब इज हाफ डन। 1/4 मतलब 0.25 और 1/8 मतलब 0.125। 0.25 में से 0.125 है तो 0.125 ही बचता है। ये तो नेगेटिव साइन कि पॉजिटिव साइन? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। नेगेटिव, क्योंकि ये 0.25 नेगेटिव था। तो मतलब इन शॉर्ट 1/4 minus 1/8 gives you 1/8. This is what I am saying. तो 1/8, जैसे 1/2 minus 1/4 gives you 1/4, है ना? वैसे ही 1/4 minus 1/8 gives you 1/8. 1/8 minus 1/16 gives you 1/16. तो ये आएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर। ये आ गया आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अर्थ, या फिर बेसिकली व्हेन इट इज इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जितना ऑर्बिट का साइज बढ़ा उतना एनर्जी कम।
Well, by the way, we already know what is equation for r, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग e माइनस e स्क्वायर 8 पाई इप्सिलॉन 0 और rn is h square epsilon 0 upon pi m square, h square epsilon 0 upon pi m e square into n square. जो जो कैंसिल हुआ ठीक, जो नहीं हुआ doesn't matter. E is equal to minus m e raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square n square. यही इक्वेशन आना चाहिए, यही इक्वेशन है. गुड. तो ये नेगेटिव साइन टेल्स यू दैट the system is a bound system, मतलब force between electron and proton is attractive. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस में हमेशा नेगेटिव साइन आती है, इसलिए ग्रेविटेशन में हर बार नेगेटिव नेगेटिव आता है एक्सेप्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव. क्यों? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. मास नेगेटिव होता है क्या? कभी सुना है क्या मेरा मास -50 है? नहीं, सुनोगे भी नहीं. ओके, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है. तो नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा? पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी. गुड. दैट मींस द सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम. मून एंड अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव क्योंकि मून इज बाउंड टू अर्थ, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस. ओके, जस्ट अ मिनट. सो एज वी डिड फॉर रेडियस, हमने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी. यहाँ पे भी कर सकते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर माइनस 31, 1.6 into 10 power minus 19 is E. H 6.63 into 10 power minus 34, epsilon 8.81 10 power minus 12. ये सारे वैल्यूज जानने के बाद रिमेंबर दिस विल बी इन जूल. आपको ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू ईवी यू गेट एनर्जी इन nth ऑर्बिट एज -13.6 by n square eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो if you put n equal to 1 you get energy in first orbit, that is -13.6. remember minus sign only tells you it is a bound system, right? Then if you put 2, so -13.6 by 2 square is 4 and so on so forth. So इट इज टेलिंग यू कि अगर इलेक्ट्रॉन ने सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप किया है तो एनर्जी इमिटेड विल बी 13.6 by 4 minus 13.6. of course with negative and negative, तो solve करोगे. so this will be the extra energy that will be released whenever there is transition from second to first orbit. और ये हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में देखने ही वाले हैं. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आपके बुक में शॉर्टकट में दिया हुआ एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल के, बट आई विल बी गोइंग इनटू डिटेल्स. व्हाई डिटेल्स? बिकॉज they will or they may ask you in the form of MCQ. आपको पता होना चाहिए कि लीमेन सीरीज बार्नर क्यों डिटेक्ट हुआ, बार्नर पहले क्यों हुआ, क्योंकि बार्नर सीरीज का जो ट्रांजिशन था वो विजिबल रीजन में आता है. तो ह्यूमन ने पहले वो देखा कि लाइन इमिट हो रही है, और लीमेन का आता है अल्ट्रा वायलेट में. सो दैट हमको पता नहीं था, राइट? हमको जो दिखता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो वी फर्स्ट ऑब्जर्व बाल्मेर सीरीज बिकॉज इट इज इन द विजिबल रीजन. मतलब 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में वो वेवलेंथ इमिट होता है जब भी ट्रांजिशन होता है फ्रॉम 3 to 2, 4 to 2, राइट, ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट. फिर लीमेन अल्ट्रा वायलेट, बाल्मेर विजिबल, लीमेन बाल्मेर पास चेन is visible, bracket and phone are in infrared. So that we will go into details. What is remaining is the last thing that you need to know. What is binding energy? The thing is binding energy in case of gravitation, yeah, in case of atoms, exactly same concept hai. Binding energy is the energy required to free revolving electron around nucleus. क्यों? सिस्टम बाउंड है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है,
तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है न्यूक्लियस से तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा. The amount of energy that should be given should be equal to total energy, but with a negative sign. Okay, so we need to give energy total but with a negative sign. So that is binding energy. So binding energy will be just minus of minus will be plus. Khatam. Right? That's it. So we will stop early today here and we'll continue with next topics in the next session. Up notes will be uploaded today.